Good morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, today we will start our topic with the properties of ionic compound. As you know that in the last class we discussed about the concept. I think we discussed about the concept of how metals and non-metals are react and why metals and non-metals are react. So today we will discuss what are the properties, and when the metals and non-metals react, you know that the metals show the nature cationic and non-metals show the nature anionic, and both cationic and anionic, when the ions are mixed with each other, they form a ionic compound with the help of ionic bonding. So now today we will discuss what are the properties that are related to the ionic compound. So first property is ionic compound consists of ions. Yes, it is correct. All the ionic compounds consist of ions. For example, if we discuss about this example, like NaCl, common salt, which is called common salt, NaCl. Here the Na represent the cationic nature and the Cl represent the anionic nature. Sodium act as a metal and chlorine act as a non-metal. Sodium lost the electron, chlorine gain the electron and form a ionic compound here. Okay. So ionic compound must contain ions. So it is right. Yes, this is the property of a ionic compound. And the second property is ionic compounds are solid. So definitely ionic compounds are solid. Why they are solid? You know that in the last class हमने डिस्कस किया जितने भी ionic compound बनते हैं वो ionic bonding से बनते हैं, और ionic bonding बहुत ज्यादा strong bonding होती है. It is a complete strong force of attraction between the two opposite ions. It is also called, we can say that the strong electrostatic force of attraction between the two ions. So the bonding is very strong, the nature is very rigid. So that's why the ionic compounds are called solid nature. Okay. So then third is ionic compounds and crystalline nature. Yes, most of the ionic compounds show the crystalline nature, and due to their crystalline nature they form a perfect symmetry. Okay. Due to this reason they are a crystal nature. We can say that crystalline nature, or they show the crystal nature, and all the ionic compounds have a perfect symmetry also. Okay. This symmetry related या crystalline nature we will study in the 12th standard. Okay. So next is ionic compounds have high melting and boiling point. Yes, ionic compounds have high melting and boiling point. It is completely correct, because अगर ionic compounds में there is a strong force of attraction between the two ions, then the bonding is very strong. That's why they are very solid in nature. They are very rigid in nature. That's why their melting and boiling point is also very high. If the bonding is weak, then the melting and boiling point is also low, but the bonding is very strong between the two opposite charge ion. That's why its melting and boiling point is very high. तो अगर क्वेश्चन आता है कि why ionic compounds have high melting and boiling point, तो आप सिंपली कह सकते हो strong electrostatic force of attraction, strong intermolecular force of attraction. आयंस के बीच में काफी अट्रैक्शन, अपोजिट आयंस के बीच में काफी अट्रैक्शन होने की वजह से उनका नेचर सॉलिड है, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है. Next one is ionic compounds are soluble in water. Yes, ionic compounds are also soluble in water. The compound that contain ions, that type of a compounds are called polar ions. So NaCl is called polar ion. Fine. Again I will repeat, the compound that contain ions like NaCl that contain ions, and ions are formed by after losing and gaining of electron, you know that, and that consists of a ionic bonding. But when the ionic compound are put in water, then it show highly सोल्यूबल नेचर. अगर मैं बात करूं नमक की, तो NaCl जो है पानी में काफी हद तक सोल्यूबल है. उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट कंटेन आयन एंड इट इज पोलर नेचर. इट हैज पोलर नेचर एंड द वाटर ऑल्सो हैज पोलर नेचर. ठीक है. एंड एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स पोलर डिजोल्व पोलर. तो वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, और H2O के अंदर जो H है वो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है, और जो ऑक्सीजन होता है वाटर के अंदर वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट करता है. इट मींस वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो कंटेन आयन. बेशक पार्शियल आयंस है, बट है तो आयंस तो है ही, प्रेजेंट है. और NaCl के अंदर कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी एक पोलर नेचर का कंपाउंड है. तो पोलर डिजोल्व पोलर ये प्रॉपर्टी होती है. तो दैट्स व्हाई the ionic compound soluble in water, but the ionic compound doesn't soluble in the another non-polar solvents like benzene, like ether, CCl4. ये वो compounds मैंने आपको बताया जो क्या नेचर के होते हैं? नॉन पोलर नेचर के होते हैं. तो NaCl मीन्स आयनिक कंपाउंड कभी भी नॉन पोलर कंपाउंड में डिजोल्व नहीं करता, वो हमेशा पोलर कंपाउंड में डिजोल्व होता है. खुद भी पोलर होता है और पानी भी वाटर है. वाटर भी हमारा क्या है? वो पोलर है. तो पोलर डिजोल्व पोलर. ठीक है. तो ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखनी है.
Next is ionic compounds conduct electricity. Yes, we know that ionic compounds contain ions and जहां भी ions होंगे, जहां ions होंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन होंगे. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मोबिलिटी नेचर में होंगे, इधर उधर घूमेंगे. जब इलेक्ट्रॉन मोबिलेशन में होंगे या इधर उधर मोबिलिटी नेचर में होंगे, मोशन में होंगे, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. दैट्स व्हाई ionic compounds show the ionic compound conduct the electricity. So these are the properties that are related to the ionic compounds. Okay, so must remember ionic compound. First one is ionic compound consists of ions, one cation, one anion. Due to this ions they are solid. Second one they are solid, and third one they have crystalline nature. Fourth one, ionic compounds have high melting and boiling point. They are soluble in water and they conduct electricity. So these are the properties that are related to the ionic compounds. Now we will study about the topic that अगर हमने बात कर ली है मेटल नॉन मेटल कैसे बनते हैं, लॉस और गेन करके बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करके बनते हैं, उनके बीच में बॉन्डिंग है, आयनिक बॉन्डिंग है. एंड नाउ वी विल डिस्कस द अकरेंस ऑफ मेटल्स इन द इन्वायरमेंट. अब मेटल में जो इन्वायरमेंट में मेटल और नॉन मेटल है, इनकी अकरेंस ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं और कैसे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज द अकरेंस ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल. डिस्कस अबाउट द अकरेंस ऑफ मेटल. तो मेटल की अकरेंस की बात करें, एग्जिस्टेंस की बात करें, तो यू नो दैट द अर्थ इज ए मेन सोर्स ऑफ existence of metals or occurrence of metals. So in the earth crust the metals are found in the two forms, that is in the free form and also in the combined form. तो free state और free form is also called native state. Free state, जब metal free state में मिलता है, किसी से combine होकर नहीं मिलता, तो उसे free state बोल सकते हैं. That type of a metal is called free state metal. और एक native state metal. और इस तरह के metals हैं जो आपने अपनी reactivity series में आपने देखा था, जब मैंने आपको metals की reactivity series पढ़ाई थी, तो metal की reactivity series के अंदर जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स है जो बिल्कुल बॉटम पे प्रेजेंट थे, वो जनरली हमारे अर्थ क्रस्ट में जो एज ए सोर्स मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर, वो हमें क्या मिलते हैं, फ्री फॉर्म में मिलते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम. तो ये हमारे मोस्ट ऑफ ये मेटल्स ऐसे हैं जो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं, नेटिव स्टेट में मिलते हैं, ये हमें किसी के साथ कंबाइन होकर नहीं मिलते हैं. तो नेक्स्ट इज कंबाइंड स्टेट मेटल्स. तो कंबाइंड स्टेट मेटल्स में बेटा वो आ जाता है जो हाईली रिएक्टिव है. जैसे अब मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, लूज करेगा, तभी तो वो स्टेबल होगा. और ऑक्सीजन है या हेलोजन्स है, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तभी तो स्टेबल होंगे. तो कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं. हम बात कर रहे हैं मेटल्स की अभी, तो अभी हम मेटल्स को लेके चलते हैं. तो मेटल्स मैंने आपको बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दैट कैरी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. सो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वो हमारे मेटल्स होते हैं जो हमारे नॉन मेटल के साथ लाइक ऑक्साइड्स बनाते हैं. नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज ए नॉन मेटल, यू नो दैट. तो ये मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बना सकते हैं. मेटल क्लोरीन के साथ मिलकर, यू नो दैट, क्लोरीन इज ए हेलोजन, सो इट इज कॉल्ड हैलाइड्स बना सकते हैं. मेटल जो होते हैं वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बोनेट बना सकते हैं. मेटल जो होते हैं वो सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बना सकते हैं. तो जितने भी मेटल्स होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में, वो जनरली नॉन मेटल के कुछ एलिमेंट्स के साथ, लाइक जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे नॉन मेटल में, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलाइड्स, इनके साथ कार्बोनेट, सल्फेट्स, इनके साथ कंबाइन होकर हमें दिखाई देते हैं. तो कंबाइंड स्टेट मेटल्स में आ जाते हैं ऑक्साइड्स, क्लोराइड्स मीन्स हैलाइड्स, कार्बोनेट, सल्फाइड्स, ये हमारे कंबाइंड स्टेट के मेटल्स हैं. और ये मेटल जनरली, अगर मेटल की बात करूं तो बोलोगे सोडियम, पोटेशियम, आयरन. और अगर मैं बात करूं उनके कंपाउंड्स की, तो किस फॉर्म में कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे, तो किसी के साथ रिएक्ट करके मिलेंगे. तो किससे रिएक्ट करेंगे, किसी न किसी नॉन मेटल से. और नॉन मेटल कौन से नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे, हाईली रिएक्टिव. और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल बेटा या तो 16 ग्रुप के मोस्टली होते हैं और 17 ग्रुप के मोस्टली हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स होते हैं. तो ये आपको, और आपको ईच एलिमेंट आपको पता हो, ईच नॉन मेटल आपको पता हो कि कौन से हमारे ग्रुप में लाई करता है. तो ऑक्सीजन जैसे 16 ग्रुप का एलिमेंट है, ये एक नॉन मेटल है, ये बहुत जल्दी किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बना लेता है. ठीक है, ओके. तो हैलाइड्स भी बन जाते हैं. क्लोरीन एक हैलाइड की फॉर्मेशन करता है किसी भी मेटल के साथ मिलकर. तो अभी आपको पता चला मेटल जो की अकरेंस होती है. तो डेफिनेटली अगेन आई विल रिपीट दैट कि अर्थ इज ए मेन सोर्स ऑफ occurrence of metal, and metals present in the environment, present in the earth crust in the two forms, free state form means native state form or combined state. Free state metal that doesn't have a capacity to react with more and more, किसी से ज्यादा रिएक्ट करने की कैपेसिटी नहीं रखते ये मेटल्स, वो हमारे फ्री स्टेट के मेटल्स हैं. और वो मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम जो ज्यादा से ज्यादा रिएक्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं. रिएक्ट किसके साथ होंगे, डेफिनेटली वो खुद मेटल है तो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट होंगे, कुछ ना कुछ नया कंपाउंड बनाएंगे. नॉन मेटल से रिएक्ट करके अगेन आई विल रिपीट ऑक्साइड बना सकते हैं, क्लोराइड्स बना सकते हैं,
सल्फाइड्स बना सकते हैं, सल्फेट्स बना सकते हैं, कार्बोनेट्स बना सकते हैं, तो ये रिएक्ट हो जाते हैं, तो इन्हें कंबाइंड स्टेट के। तो नेम द फ्री स्टेट्स मेटल अब की बात करूं तो गोल्ड इज ए बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस, इट इज ए फ्री स्टेट मेटल कंप्लीटली, प्लेटिनम इज ए फ्री स्टेट मेटल, और कंबाइंड स्टेट के मेटल्स हमारे सभी हैं जो जिनकी रिएक्टिविटी हाई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दोज मेटल विच डजंट, अगर ये दोनों ही नेचर को शो करें, फ्री स्टेट नेचर को भी शो करें, कंबाइंड स्टेट नेचर को भी शो करें, तो ये कॉपर इज ए बेस्ट एग्जांपल जो फ्री स्टेट मेटल में भी कंसीडर किया जाता है, और गोल्ड, इवन सिल्वर भी क्या करते हैं, फ्री स्टेट मेटल में भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे, और कंबाइंड स्टेट में। तो सिल्वर भी कुछ हद तक, जो सिल्वर होता है उसके सल्फाइड्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो सल्फाइड्स की फॉर्मेशन बहुत अच्छे से करता है सिल्वर, तो सिल्वर हमारा कंबाइंड स्टेट में भी हमें मिलता है। तो कॉपर एंड सिल्वर प्रेजेंट इन बोथ स्टेट, फ्री स्टेट एंड combined state. Fine. Now we will start our topic with the what are the minerals. Minerals क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? अब हमारा टॉपिक है मिनरल्स क्या है। तो मिनरल्स आर द नेचुरल सब्सटेंसेस इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। तो मिनरल्स बेटा अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, और ये वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर मेटल्स या तो फ्री स्टेट में मिलते हैं या किसी के साथ कंबाइन होकर। तो मेटल प्रेजेंट इन ए फ्री स्टेट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड नेटिव स्टेट, और इन ए कंबाइंड स्टेट, दैट टाइप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स। फाइन। Or some impurities are also present with the minerals. That impurities are called gangue or matrix. तो कभी आपका एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर द गैंग्यू पार्टिकल। तो दोज पार्टिकल विच आर प्रेजेंट एज ए इम्प्योरिटी विद द मिनरल्स आर कॉल्ड गैंग्यू पार्टिकल्स और मैट्रिक्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन इज और। व्हाट आर द और? और आर द टाइप ऑफ मिनरल्स। और जो ओर्स होते हैं वो एक मिनरल्स का ही टाइप है, एक टाइप के मिनरल्स ही हैं, फ्रॉम विच, जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कैसे? कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली वे से प्रॉफिटेबली उसे गेट करना, मेटल्स को मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करना कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली, दिस इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड ओर्स। इन्हें ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी एक टाइप के मिनरल्स होते हैं, बट वो हमारे मिनरल्स जिनसे मेटल को कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली गेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ओर्स की बात करूं तो एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, याद रखना है, फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, Al2O3.2H2O। नेक्स्ट है हेमेटाइट, आयरन का ओर है Fe इज द आयरन एंड द नेम ऑफ द ओर इज हेमेटाइट, द Fe2O3। इसी तरीके से एक ओर है हमारे पास मरकरी का, Hg का, उसका ओर है HgS, उसका सिंबल है, और उसका नाम है बेटा सिनेबार, CINNABER, सिनेबार। इसी तरह से हमारे पास एक एलिमेंट और है Pb, जिसका ओर है PbS, इसे बोलते हैं गैलेना। ठीक है, तो ये कुछ ओर्स मैंने आपको बताया जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इस तरह से कॉपर का भी एक ओर है जिसे कॉपर पायराइट बोलते हैं। ठीक है, Cu2S। ठीक है, तो दीज आर द ओर्स। अगेन आई विल रिपीट, ओर्स क्या होते हैं? एक टाइप के मिनरल्स ही होते हैं जिनसे मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली, एंड सम एग्जांपल्स बताए मैंने ओर्स के। तो कुछ एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास, एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, आयरन का और है हेमेटाइट, मरकरी Hg जिसका और है सिनेबार, और Pb का और है गैलेना, एंड एक मैंने बताया कॉपर का और है कॉपर पायराइट। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ या सम एग्जांपल्स ऑफ द ओर्स। ठीक है, तो नाउ अगर मैंने बात करी है कि मेटल्स को प्रॉफिटेबली गेट करना है, ठीक है, तो अपने आप तो ओर्स में से गेट होगा नहीं, तो हमें अप्लाई करना पड़ेगा कुछ प्रोसेस। पहले हमने क्या करना पड़ेगा, मेटल्स को गेट करने के लिए जो भी प्रोसेस अप्लाई होगा, जो भी हमारी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे दैट इज मेटलर्जी। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक दैट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी क्या है, मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है कि आपने मेटल्स को अगर गेट करना है प्रॉफिटेबली, तो उसके लिए जो भी स्टेप और जो भी प्रोसेस अप्लाई होंगे, दिस इज रिलेटेड टू मेटलर्जी कंसेप्ट। तो इन द नेक्स्ट class we will discuss about the topic metallurgy. आज के लिए इतना ही, so do your work regularly. Okay.